Hello everyone, I am Ruchi. Welcome to my channel Reckon Classes. If you want to take an exam for the railways, MBA, SSC, banks, insurance, income tax, or if you want to write an exam for further studies, one of the most important subject is mathematics. So brush up on your math skill because I am going to teach you. Today I have prepared a lesson on square roots and cube roots. Let's start. Square root. A square root of a number x is a number y such that y square equal to x, or we can say y equal to root x. For example, under root 9 equal to 3, or you can say root 49 equal to 7. Now cube root. A cube root of a number x is a number y such that y cube equal to x, or we can say y equal to cube root of x. For example, cube root of 8 equal to 2, or cube root of 125 equal to 5. Example number first. If under root 841 equal to 29, then find the value of the given expression. So here, given expression equal to under the root 841 plus under root 8.41 plus under root 0.0841 plus under the root 0.000841. This is equal to under root 841 plus under the root 841 upon 100 plus under the root 841 upon 1000040 आ जाएंगे. देन पॉइंट हटाएंगे तो 841 अपॉन 1000006 zeros आ जाएंगे. नाउ substitute the value of under root 841, so we get 29 plus 29 upon under root 100 equal to 10 plus 29 upon 100 plus 29 upon 1000, and this is equal to 29 plus 2.9 plus 0.29 plus 0.029, and this is equal to 32.219, and this is our answer. Now example number second. If under root 1 plus x by 144 equal to 13 by 12, then find the value of x. Here 1 upon under root 1 plus x upon 144 equal to 13 by 12. Then squaring both the sides, we get 1 plus x upon 144 equal to 13 by 12 whole square. This implies 1 plus x upon 144 equal to 169 upon 144. This implies x upon 144 equal to 169 upon 144 minus 1. This implies x upon 144 equal to 169 minus 144 upon 144. This implies 144 cancel हो जाएगा. Then x equal to 25. So x equal to 25 is our answer.
Example number third. Find the value of the given expression. Given expression, इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट है 1/√1 प्लस √2. इसकी जगह हम इसका √2 को पहले कर देते हैं, मतलब बड़े इसको नंबर को पहले कर देते हैं. तो 1/√2 प्लस √1 लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नंबर प्लस में हैं. देन 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 एंड सो ऑन प्लस 1/√121 प्लस √120. इस तरह से हमने लिख लिया. जब भी हमें इस तरह की कोई भी सीरीज़ या इस तरह का दिया होता है तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट के टर्म्स हैं, तो हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए होता. तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से हर टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. कैसे? जैसे फर्स्ट टर्म क्या है 1/√2 प्लस √1, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √2 माइनस √1 अपॉन √2 माइनस √1. तो इससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. इससे बेनिफिट क्या रहता है, हमारे पास डिनोमिनेटर में सिंपल नंबर आएगा, रूट वाली टर्म्स हमारे पास हट जाएंगी. देन प्लस 1/√3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 इंटू √4 माइनस √3 अपॉन √4 माइनस √3 एंड सो ऑन. इसी तरह से लास्ट टर्म 1/√121 प्लस √120 देन इंटू √121 माइनस √120 अपॉन √121 माइनस √120. इस तरह से हमने इसको लिख लिया. देन दिस इज फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी √2 माइनस √1 अपॉन, इन दोनों को जब टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, देन वी हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इट मीन्स 2 माइनस 1, √2 स्क्वायर इक्वल टू 2 and √1 square equal to 1. Then √2 minus 1. This is plus next term क्या आ जाएगी √3 minus √2 upon 3 minus 2 plus √4 minus √3 upon 4 minus 3 and so on. लास्ट टर्म हो जाएगी √121 माइनस √120 अपॉन 121 माइनस 120 एंड दिस गिव्स, डिनोमिनेटर में सब जगह 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस √1 अपॉन 1 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √4 माइनस √3 अपॉन 1 एंड सो ऑन प्लस √121 minus √120 upon 1, and this is equal to √2 minus √1 plus √3 minus √2 plus √4 minus √3 and so on plus √121 minus √120. तो √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल. इसी तरह से सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा माइनस √1 एंड √121 एंड √1 इक्वल टू 1 एंड √121 इक्वल टू 11 एंड दिस इज इक्वल टू 10. 11 minus 1 equal to 10, so our answer is 10. Example number 4, find the value of the given expression. So for this given expression equal to under the root 2 plus √3 into under root 2 plus under root 2 plus √3 into under the root 2 plus root
2 plus root 2 plus root 3 into root 2 minus root 2 plus root 2 plus root 3, and this is equal to, अब इसमें देखिए कि जो हमारे पास लास्ट टू टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स में देखिए इनमें 2 और बाद वाली टर्म अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 दोनों सेम है, बस बीच में प्लस और माइनस का फ़र्क है. इट मीन्स ये a प्लस बी एंड a माइनस बी की तरह हो गया. तो जब हमारे पास ये a प्लस बी और a माइनस बी है तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास ऐसे की ऐसे आ जाएंगी, उनको हमने ऐसे ही लिख लिया. और लास्ट टू टर्म्स के लिए हम लिख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया. एंड दिस गिव्स फर्स्ट टू टर्म्स ऐसे के ऐसे 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस रूट 3, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस रूट 3. ये हमारे पास आ गया. एंड दिस गिव्स 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 2 ब्रैकेट खोलेंगे माइनस अंडर द रूट 2 प्लस रूट 3. ये हमारे पास आ गया. नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 4 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस रूट 3. अब अगेन इस वाले इसमें देखिए 2 दोनों में सेम है. अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 सेम है. अगेन a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम. तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू अंडर द रूट 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर. एंड दिस इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3. ऐसा कैसा आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस रूट 3, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 4 माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू under the root 2 minus root 3. Again a plus b and a minus b, so we get a square means 2 square minus root 3 square, and this is equal to under root 4 minus 3 equal to under root 1, and this is equal to 1. So our answer is 1. Clear? Example number 5th. Solve this one. So, 4th root of 625 cube. This is equal to 625 power 3 by 4. And 625 इसको हम लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 into 5 power 3 by 4. So this is equal to 5 raised to the power 4 power 3 by 4. 4 power cancel हो जाएगी, and we get 5 raised to the power 3, and 5 raised to the power 3 equal to 125. So our answer is 125. Example number 6th. If under root 33 equal to 5.745, then find the value of under root 3 by 11.
सो √3/11, क्योंकि हमें √33 की वैल्यू दी हुई है तो हमें एक्सप्रेशन 33 में बनाना होगा। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू √33/11। ये हमारे पास आ गया, एंड √33 की वैल्यू 5.745/11, एंड दिस इज इक्वल टू 0.5223 आंसर। Example number 7th. Find the smallest number that must added to 1780 to make it a perfect square. So for this, first हमने इसको लिखा और हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट दो दो के पेयर्स बनाते हैं। अब फर्स्ट पेयर हमारे पास, फर्स्ट उसका डिजिट क्या है, 17। तो हम किस नंबर को, ऐसा कौन सा नंबर है को उसी से उसको मल्टीप्लाई करने पर 17 या 17 से कम आए, तो वो नंबर है 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 16। तो यहाँ 4 लिखा, यहाँ हमने 4 लिखा और यहाँ पर हमारे पास 16 आ गया। तो 17 यहाँ पर 1 बच गया, और इधर हमने 4 को ऐड किया तो हमारे पास 4 + 4 8 आया। ये हमने लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, पेयर उतारेंगे यहाँ पर 80। अब हम एक नंबर 8 के साथ में लिखेंगे ताकि उस नंबर से, जैसे सपोज़ 1 लिखें या 2, जैसे हमने 2 लिखा तो 82 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 164। तो 164 180 या 180 से कम है। अगर हम 3 लिख देंगे तो वो 83 लिखें, मान लीजिए 3 करें तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 और 249 आएगा। तो 3 तो नहीं आएगा, हमने पास 2 से किया तो यहाँ पे भी हमने 2 लिखा। 82 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया 164। यहाँ पर हमारे पास बचा 16 और हम यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास 84 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 42 आ गया। तो इसका मतलब 42 का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि 42 का परफेक्ट स्क्वायर से 16 बच रहा है। तो हमारे पास नंबर टू बी एडेड क्या होगा, हम इसको 43 स्क्वायर माइनस 1780 इक्वल टू 1849 माइनस 1780 इक्वल टू 69। तो अगर हम इस डिजिट में 1780 में 69 जोड़ दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इट मीन्स ये 43 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसमें 69 कम है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 69। Example number 8. By what least number 21600 be multiplied to obtain a number which is a perfect cube? Now we are talking about cube. So for this, first 21600 इसके हमने फैक्टर्स किए। So we have 2 raised to the power 5 into 3 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2. So to make it a perfect cube, it must be multiplied by 2 into 5 means 10. That is 10. So our answer is 10. 10 से मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब हो जाएगा क्योंकि एक 5 कम है एंड एक 2 कम है। तो इसको 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी हैव अ परफेक्ट क्यूब। Example number 9th. What is the smallest number by which
3600 divided to make it a perfect cube. So again 3600 के हमने factors किए, then we have 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2 into 2. So to make 3600 a perfect cube, it must be divided by 5 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2 into 2, that is 450. So our answer is 450. Example number 10th. Solve the given expression. So given expression is under root 24 divided by 0.5 plus 1 plus under the root 18 divided by 0.6 plus 6. ये देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। और जल्दी सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट 24 इंटू डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में लगाएंगे तो वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, रिवर्स हो जाती है, प्लस 1 प्लस अंडर द रूट 18 इंटू 1 अपॉन 0.6 प्लस 6 इक्वल टू 24 इंटू 10/5 पॉइंट हटा दिया, प्लस 1 प्लस अंडर रूट 18 इंटू 10/6 प्लस 6. सो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स एंड 6 3 टाइम्स. दिस इज इक्वल टू 48 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 30 प्लस 6 इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस रूट 36 इक्वल टू रूट 49 इक्वल टू 7 प्लस रूट 36 6, and this is equal to 13. So our answer is 13. Now I am going to give you some practice problems with answers. Do them carefully. If you have any problem or doubt related to this topic, please comment below. I will try to respond to each one of your questions. इस वीडियो में हमने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस किए. एक और मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स के और जितने वीडियोस हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. होप यू एन्जॉयड लेसन टुडे. आई विल बी अपलोडिंग नेक्स्ट वीडियो सून. Please like and subscribe the bell icon to not miss the upcoming videos. Thank you.